तो सेंट्रल सर्कस के पहले वाला रीजन अगर मैं देख रही हूँ, जो प्री सेंट्रल गायरस है वो फ्रंटल लोब में होगा, जो पोस्ट सेंट्रल गायरस है वो पैराइटल लोब में होगा. ऑल ऑफ यू नाउ जस्ट राइट दिस पॉइंट, प्री सेंट्रल गायरस बिफोर और एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस. एमसीक्यूज में ये सब पूछते हैं. प्री सेंट्रल गायरस विल बी द रीजन विच विल बी एंटीरियर. देखो ये मेरा फेस साइड है, ये मेरा वेंट्रल साइड है, सो इट इज एंटीरियर टू द सेंट्रल सर्कस, इट इज टूवर्ड्स द फेस साइड. तो फेस साइड में आने वाला गायरस will be the pre-central gyrus. This will be in the frontal lobe. See, you can see the location. Central sulcus के पीछे वाला gyrus, पीछे वाला elevation will be the post-central gyrus. The post-central gyrus will be in the parietal lobe. All of you just write these points about the central sulcus, about the pre-central gyrus, about the post-central gyrus, and you are going to do these simple diagrams. ये सिंपल डायग्राम बनाओ. ये जो नीचे आ रहे हैं वो सल्कस है, ऊपर जो एलिवेशंस हैं वो गायराए हैं. तो सेंट्रल सल्कस के ये साइड प्री सेंट्रल गायरस विच विल बी इन द फ्रंटल लोब, पोस्ट सेंट्रल गायरस विच विल बी इन द पैराइटल लोब. So pre-central gyrus in the frontal lobe, post-central gyrus in the parietal lobe. Central sulcus will be the depression. So ये लिख लो, gyri will be the elevation or the ridges. All of you write this, gyri will be the elevation or the ridges, and sulci will be the grooves or the depression. And दोनों का काम होगा to increase the surface area of the cerebrum. Why do we want to increase the surface area? To accommodate billions of neurons that are present in the brain. To increase the surface of the area of the cerebrum, to accommodate billions of neurons. Chalo. Now coming to the next point. Okay, coming to the next point, we all have done this simple diagram जो अभी बोर्ड पे है. अब हमने सेंट्रल सल्कस से देखा है what is pre-central gyrus and what is post-central gyrus. Pre-central gyrus is present in the frontal lobe, post-central gyrus is present in the parietal lobe. This pre-central, ये देखो, ये जो पिंक एरिया है marked, that is the pre-central gyrus, and this purple area is the post-central gyrus. So immediately ये sulcus का anterior part towards this face side is the precentral gyrus, towards the posterior side is the postcentral gyrus. एक frontal lobe में है, एक parietal lobe में है. This precentral gyrus is motor area. This precentral gyrus, it is the primary motor area, and this postcentral gyrus, it is the primary sensory area. लिखो अभी आपके पास. This precentral gyrus, it is the primary motor area. Post-central gyrus is the primary sensory area. What do we mean by motor and sensory, beta? बोलो. Those neurons are present in that region. Yes, sensory means body से आने वाला जो सारा stimulus है वो यहाँ पे आएगा, और ब्रेन से जो इफेक्ट जाएगा बॉडी के इफेक्टर ऑर्गन्स को वो यहाँ से जाएगा. सेंसरी एरियाज मीन्स ये रिसीव करेगी सारा सिग्नल बॉडी से जो आ रहा है, हमारे सेंस ऑर्गन्स से जो आ रहा है. इट्स गोइंग टू बी रिसीव्ड इन दिस प्राइमरी सेंसरी एरिया, एंड वॉट एवर सिग्नल, वॉट एवर इफेक्ट इज गोइंग टू गो बैक फ्रॉम द मोटर एरिया वो यहाँ से जाएगा, विच इज़ द प्राइमरी मोटर एरिया. So MCQ again, primary sensory area is located in which lobe? Parietal lobe. Parietal lobe. Primary motor area is located in which lobe? Frontal lobe. Yes. Primary sensory area is in the parietal lobe. Which area is primary sensory area? Pre-central gyrus or the post-central gyrus? Post-central gyrus. Which area is the primary motor area? Pre-central gyrus. All right. So here I want you to understand pre-central gyrus is the motor area
and post-central gyrus is the sensory area. सो प्राइमरी सेंसरी एरिया हमारे पैराइटल लोब में लोकेटेड है, उसका लोकेशन भी हमने देख लिया है. प्राइमरी मोटर एरिया ये हमारे फ्रंटल लोब में लोकेटेड है, उसका लोकेशन भी हमने देख लिया है. अब फ्रंटल लोब में ये मोटर एरिया के पहले, अब एंटीरियर टू द मोटर एरिया इज प्री मोटर एरिया. एंटीरियर टू दिस मोटर एरिया इज प्री मोटर एरिया. नाउ what do we mean by motor area? Will it be concerned with voluntary functions or involuntary functions? बोलो. Do you remember somatic and autonomic nervous system? उसमें Yes, से sir. कौन सा सिस्टम वॉलेंट्री फंक्शंस के साथ कंसर्न था? सोमैटिक. यस. सो ये प्री मोटर एरिया में मोस्टली हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होगा. इन द प्री मोटर एरिया यू विल हैव द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. Okay, we don't have a diagram here for that. Okay, we will do it. So motor area के just पहले होगा pre-motor area. Here in this region will be the pre-motor area. The pre-motor area will be concerned with involuntary functions of the body जो पूरा टाइम चालू है, जैसे कि हमारा पेरिस्टाल्सिस, हमारा ब्रीदिंग, ये सब हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस हैं. ये पूरा टाइम चालू है, ये एक्शन चालू है. सिर्फ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको रेगुलेट करने वाला है थ्रू सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. सिंपैथेटिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? सिंपैथेटिक क्या करेगा? इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज. फाइट और फ्लाइट में सिंपैथेटिक काम करेगा. ओके, रेस्टिंग एंड रिस्टोरिंग में पैरासिम्पैथेटिक काम करेगा. सो ये मोटर एरिया के पहले वाला एरिया होगा मेरा प्री मोटर एरिया. प्री मोटर एरिया विल मेनली बी कंसर्न विद द फंक्शंस ऑफ द बॉडी जो चालू हैं, हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस. हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस जो चालू हैं, तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को. सो यहाँ पे प्री मोटर एरिया आएगा और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम लिखेंगे. वी आर गोइंग टू डू दिस इन द डायग्राम. और ये जो सामने का पूरा एरिया है, ये जो सामने का पूरा एरिया है विच इज़ द वेंट्रल साइड ऑफ द फ्रंटल लोब. वाई वेंट्रल साइड? क्योंकि ये एंटीरियर साइड है. ओके, जहाँ से मैं कर्सर दिखा रही हूँ. दिस एंटीरियर साइड ऑफ द फ्रंटल लोब इज एसोसिएशन एरिया. नाउ व्हाट इज एन एसोसिएशन एरिया? सी ऑन द स्क्रीन. सेंसरी एरिया वो होगी जो मैसेज रिसीव करेगी. मोटर एरिया वो होगी जो एक्शन देगी हमारे वॉलेंट्री मसल्स को मोस्टली. एसोसिएशन एरियाज वो होगी जो मिक्सचर होगी सेंसरी और मोटर एरियाज की. दिस इज़ नीदर सेंसरी नॉर मोटर. यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग होगा. तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये एरिया प्योरली सेंसरी है या ये एरिया प्योरली मोटर है. हम बोलते हैं कि ये एसोसिएशन एरिया है. एसोसिएशन एरिया इज़ द एरिया विच इज़ नीदर प्योरली सेंसरी नीदर प्योरली मोटर. यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन होगा, प्रोसेसिंग होगा सब रिस्पॉन्सेस का. सो ये होगी एसोसिएशन एरिया. सो इन योर फ्रंटल लोब you will have this primary motor area. उसके पहले, उसके anteriorly you will have the premotor area. premotor area के आगे आपके पास रहेगा association area. So motor area, premotor area and association area, ये तीनों areas रहेगी frontal lobe में. उसके अलावा ये fourth area रहेगी which is the Broca's area. उसके अलावा ये फोर्थ एरिया रहेगी विच इज़ द ब्रोकाज एरिया. दिस ब्रोकाज एरिया इज़ कंसर्न्ड विथ द मोटर स्पीच एरिया बोलते हैं इसको. दिस इज़ मोटर स्पीच एरिया. दैट मीन्स हाउ यू स्पीक, हाउ यू कम्युनिकेट, ऑल योर प्रोनाउंसिएशंस. आप कैसे बोल रहे हो, एक कॉन्वर्सेशन सुन के आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपको ये स्पीच कैसे आ रही है. तो आपको बात करने के लिए कौन से मसल्स और कौन से ऑर्गन्स को हम मूव करते हैं? बोलो मुझे. बात करने के लिए हम कौन से ऑर्गन्स और कौन से मसल्स को मूव करते हैं? चलो. ओके, जॉ मसल्स, टंग. यस. सो ये इनको ऑर्डर देगा. ब्रोकाज एरिया इज गोइंग टू ऑर्डर द टंग
to move properly and to pronounce words properly. अगर मुझे प बोलना है तो मेरी टंग का मूवमेंट कैसा होगा? बोल के देखो प, बोल के देखो ट, ट बोलने में टंग का मूवमेंट कैसा हो रहा है? सो मैं ये क्यों पर्टिकुलर वर्ड्स प्रॉपरली प्रोनाउंस कर सक रही हूँ? बिकॉज मेरा ब्रोकाज एरिया कंट्रोल करता है मेरा मोटर स्पीच. मोटर स्पीचेस जो मुझे यहाँ से ऑर्डर मिल रहा है और मैं बोल रही हूँ. ऑल दिस इज़ वेरी फास्ट. अभी आई एम स्पीकिंग, आई एम गेटिंग दैट कंट्रोल, आई एम गेटिंग दैट रेगुलेशन थ्रू दिस ब्रोकाज एरिया फ्रॉम द ब्रेन. अपने आप वर्ड्स बनते जा रहे हैं. बट हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग, हर एक पर्सन का प्रोनाउंसिएशन अलग होता है. ऑल राइट. सो हाउ आई एम स्पीकिंग, मेरे जॉ मसल्स को, मेरे टंग को, सबको ऑर्डर मिल रहा है टू मूव. दे आर गिविंग दैट पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन. ऑल दिस इज डन बाय द ब्रोकाज एरिया विच इज़ द मोटर स्पीच एरिया. फ्रंटल लोब को अभी हम ड्रॉ करेंगे. सो वी आर गोइंग टू डू दिस पार्ट फ्रॉम द सेंट्रल सर्कस. सेंट्रल सर्कस के पहले मोटर एरिया, उसके पहले प्री मोटर एरिया, उसके पहले एसोसिएशन एरिया, एंड देन रहेगा ये ब्रोकाज एरिया. चलो क्विकली वी विल बी डूइंग दिस सिंपल ड्राइंग ऑफ द functional areas in the frontal lobe. See, this is my central sulcus. This is my central sulcus. This area is my precentral gyrus. So this is my primary motor area. Primary motor area. प्राइमरी मोटर एरिया के पहले होगा ये एरिया, होगा प्री मोटर एरिया. प्री मोटर. वाई आर वी कॉलिंग इट प्री मोटर? क्योंकि यहाँ पे हर टाइम हमको सिग्नल नहीं चाहिए. हमारे बॉडी की बहुत सारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ हैं जो पूरा टाइम चालू हैं. सिर्फ उसका स्पीड का रेगुलेशन होता रहता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, व्हेन द बॉडी इज इन डेंजर, तो ये स्पीड बढ़ जाएगी. जब बॉडी रिस्टोर कर रही है, रिलैक्स कर रही है, ये स्पीड कम हो जाएगी. दिस इज द प्री मोटर एरिया. प्री मोटर एरिया विल बी कंसर्न विथ इनवॉलेंट्री फंक्शंस. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या तो उसकी स्पीड बढ़ाएगा या उसकी स्पीड कम करेगा. इनवॉलेंट्री फंक्शंस. Motor area, primary motor area will be concerned with voluntary functions, willful activity या voluntary functions. And this area will be the association area. This area will be the association area. यहाँ पे पूरा processing होगा. By association area I mean it is neither sensory, neither motor. इट्स अ कॉम्प्लेक्स एरिया. ये कॉम्प्लेक्स एरिया है. यहाँ पे पूरा प्रोसेसिंग होगा. योर अबिलिटी टू टेक अ जजमेंट, जजमेंट करने की, डिसीजन लेने की, कुछ प्लान करने की, वो सब काम होता है एसोसिएशन एरिया में, विच इज़ दिस प्री फ्रंटल एरिया. प्री फ्रंटल बिकॉज फ्रंटल लोब का सबसे पहला एरिया है. सो आपका इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैसा है, आपका एबिलिटी टू डील विथ इमोशंस कैसा है, आपका डिसीजन मेकिंग कैसा है, आपका प्लान करने का वे कैसा है, ऑल दिस डिफाइंस योर पर्सनैलिटी. सो दिस एसोसिएशन एरिया इज गोइंग टू डिफाइन योर पर्सनैलिटी. हाउ यू टेक थिंग्स एंड हाउ यू डील विथ देम, हाउ यू डू योर डिसीजंस, आप कैसे प्लान करते हो, विल बी योर पर्सनैलिटी मेकिंग. And there's going to be one area over here, which is this. This is the Broca's area. Broca's is after the scientist who has discovered this area. And it is a, एक मिनट बेटा, it is motor speech area. जब मैं सेंसरी स्पीच एरिया बताऊंगी तो आपको समझेगा कि मोटर स्पीच एरिया और सेंसरी स्पीच एरिया में क्या डिफरेंस है. So this Broca's area, it is the motor speech area. It will be present at the place जहाँ पे lateral sulcus divide कर रहा है temporal lobe और frontal lobe को. C, ये वहाँ पे, just वहाँ पे present है. हाँ बोलो, someone was saying something.
मैम आपने वो कॉम्प्लेक्स के नीचे क्या लिखा है एसोसिएशन एरिया में? जजमेंट, डिसीजन, जजमेंट, डिसीजन, प्लानिंग, इंटेलिजेंस, हाउ यू सॉल्व प्रॉब्लम्स, आप प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हो, that this area is going to define your personality, how you deal with emotions. So frontal lobe के साथ now all of you should understand these 4 areas. First is the primary motor area, second is the premotor area, third is the association area, and the fourth is Broca's area. फ्रंटल लोब के साथ आपको अभी ये चारों एरियाज समझ में आने चाहिए और ये किससे कंसर्न है वो समझ में आने चाहिए. प्री मोटर एरिया विल बी डीलिंग विद द इनवॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा. मोटर एरिया विल बी डीलिंग विद द वॉलेंट्री फंक्शंस ऑफ द बॉडी. ब्रोकाज एरिया इज अ मोटर स्पीच एरिया. मोटर मीन्स हम कैसे बात कर रहे हैं. मोटर मीन्स ब्रेन से मुझे सिग्नल आ चुका है और मैं वर्ड्स बोल रही हूँ. हमारा बोलना इज मोटर स्पीच एरिया. हमारा बोलना इज मोटर स्पीच एरिया. ऑलराइट. और हमारा सुनना इज सेंसरी स्पीच एरिया. हाँ बेटा बोलो. मैम आप सबके लोकेशन एक बार फिर से बता दीजिए. हाँ देखो डायग्राम में सेंट्रल सल्कस के जस्ट पहले वाला रीजन इज द प्री सेंट्रल गायरस. ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है दैट इज प्राइमरी मोटर एरिया. प्राइमरी मोटर एरिया के एंटीरियर पार्ट में, एंटीरियर हम ये साइड आ रहे हैं अभी, कर्सर देखो, वी आर कमिंग टूवर्ड्स द एंटीरियर साइड. दिस इज माय पोस्टीरियर साइड. सो प्राइमरी मोटर एरिया के एंटीरियरली होगा प्री मोटर एरिया. प्री मोटर एरिया के एंटीरियरली होगा एसोसिएशन एरिया. एसोसिएशन एरिया सबसे बड़ा होगा. देन यू हैव दिस ब्रोकाज एरिया which is the motor speech area, which is the motor speech area. So all of you now quickly I want you to do this kind of chart. देखो एरिया लिखो, लोकेशन लिखो, फंक्शन लिखो. फ्रंटल लोब का अभी जितना हमने देखा है उतना लिखेंगे. प्री मोटर एरिया, मोटर एरिया और ब्रोकाज एरिया, ये तीनों लिखो. ये फ्रंटल लोब में आएंगी. प्री मोटर एरिया विल बी कंसर्न्ड विथ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ मसल्स एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. बिकॉज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये इनवॉलेंट्री है, ये हमने क्लासिफिकेशन में देखा है. देन मोटर एरिया अगेन फ्रंटल लोब विल बी कंसर्न्ड विथ वॉलेंट्री मूवमेंट्स. ब्रोकाज एरिया विल बी कंसर्न्ड विथ मोटर स्पीच एरिया. एक हॉरिजॉन्टल पेज पे आप ये चार्ट बनाओ या वर्टिकल पे. पहले आप अभी ये 3 एरियाज लिख लो, फ्रंटल लोब लिख लो, उसका फंक्शन लिख लो. मैम वो चार्ट दिखाइए ना. हाँ ये सुन लो पहले. ये सामने की जो एसोसिएशन एरिया होगी that will be dealing with your problem solving ability, your decision making ability, your intelligence quotient, your movements, your social interaction, your emotional quotient. ये सब ये एसोसिएशन एरिया इसके साथ डील करेगा. सो ये एसोसिएशन एरिया भी लिख लो यहाँ पे और उसका फंक्शन भी लिख लो. फ्रंटल लोब में ये 4 एरियाज मिलेगी. अगर सामने से चालू करेंगे तो एसोसिएशन एरिया, उसके पीछे प्री मोटर एरिया, उसके पीछे मोटर एरिया, मोटर एरिया के पीछे सेंट्रल सल्कस, एंड आपको मिलेगा एक ब्रोकाज एरिया विच इज द मोटर स्पीच एरिया. ब्रोकाज एरिया इज द मोटर स्पीच एरिया. ऑल ऑफ यू राइट दिस डाउन. बैकलॉग मत रखो बाद में लिखने के लिए, लिख लो अभी.
और ये मेरा सिंपल डायग्राम रहेगा ऑफ द फ्रंटल लोब. Functional areas in the frontal lobe. 1, 2, 3 and 4. 4 functional areas in the frontal lobe. Done all of you? Chalo. Yes, ma'am. Let's move further now. Let's see now what we have in the parietal lobe. See, the parietal lobe has sensory association area. This is the primary sensory area और उसके पीछे रहेगी सेंसरी एसोसिएशन एरिया. ये प्राइमरी सेंसरी एरिया ये रिसीव करेगी जो कुछ आएगा और सेंसरी एसोसिएशन एरिया में ये सबका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन होगा. सो parietal lobe will mainly be concerned with the sensory area. सेंसरी स्टिमुलस नीचे से जो भी बॉडी ऑर्गन से आएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा के थ्रू, पॉन्स के थ्रू, मिड ब्रेन से ट्रैवल करके, थैलेमस से ट्रैवल करके पहुंचेगा ये रीजन में आएगा ब्रेन के. दिस इज द सेंसरी एरिया. parietal lobe will mainly be concerned with the sensation. तो कौन सा सेंसेशन हो सकता है हमको? टंग पे कौन सा सेंसेशन होगा? बोलो जल्दी. टेस्ट. स्किन पे कौन सा सेंसेशन होगा? यस. टच. टेम्परेचर, टच, टेस्ट, पेन, प्रेशर, ये सब जो सेंसेशंस हैं वो यहाँ पे आएंगे. नाउ आई वॉन्ट यू टू नोट ओवर हियर कि यहाँ पे स्मेल का, विजन का और साउंड का ये नहीं आएगा, बिकॉज इनके लिए हमारे पास अलग एरियाज़ हैं. विजन के लिए हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब है पूरा, ये विजुअल एरिया रहेगी. देखो, विजन के लिए हमारे पास ये पूरा लोब है. यहाँ पे टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन, टेस्ट, TTPP, टेम्परेचर, टच, टेस्ट, ट्रिपल T and PP, प्रेशर एंड पेन. सो parietal लोब में आप लिखो इट इज़ अ सेंसरी एरिया. दिस सेंसरी एरिया इज द पोस्ट सेंट्रल गायरस. This sensory area is the post-central gyrus. It will give sensations of temperature, touch, pressure, pain and taste. Somasthetic area. Soma means body. Body से आने वाले sensations. It is called somasthetic area. बॉडी से आने वाले सेंसेशंस ये आएंगे parietal लोब के पास. यहीं पे एक एरिया डिफ्रेंशिएटेड रहती है, ये गस्टेटरी एरिया. देखो, ये सेंस देती है टेस्ट का. आपको इतना डिटेल में नहीं है कि गस्टेटरी एरिया कौन सी है ये सोमास्थेटिक एरिया के पार्ट में, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस लोब ऑफ द दिस पार्ट ऑफ द parietal लोब, इट इज़ गोइंग टू रिसीव ऑल द सेंसेशंस of temperature, touch, pressure, taste and pain. मैम आप एक बार रिपीट कर सकते हो? Yes, बेटा. टेम्परेचर, टच और देखो, दिस इज माई फ्रंटल लोब. अब इसके पीछे ये मेरा parietal लोब है. दिस विल बी द ऑक्सीपिटल लोब. ये मेरा parietal लोब है. This is the central sulcus. So this area is the post central gyri, and this is the primary sensory area. It is the primary sensory area. इसमें हम इतना ही याद रखना है हमको, ट्रिपल TPP, टेम्परेचर, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन.
अब इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स में से स्किन और टंग वाले सेंसेशंस यहाँ पे आ रहे हैं, बाकी नोज़ हमारा एक सेंस ऑर्गन है, आईज़ हमारी एक सेंस ऑर्गन है, और ईयर्स हमारे एक सेंस ऑर्गन्स हैं. सेंस ऑफ स्मेल, सेंस टू सी एंड सेंस टू हियर, ये यहाँ पे नहीं है. इनके लिए हमारे पास अलग एरियाज़ हैं. टेम्परेचर, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, ये आएगा यहाँ पे. तो अभी स्किन तो हमारी बॉडी के हर जगह पे प्रेजेंट है, तो वहाँ से आएगा ये सेंसेशन यहाँ पे. सी इन द सेंसरी एरिया यू कैन सी हमारे फीट से, हमारे ट्रंक से, शोल्डर से, एल्बो से, रिस्ट से, हैंड से, फिंगर्स से, लिप्स से, टंग से, हर जगह से ये वाली सेंसरी सेंसेशंस आएगी पैराइटल लोब में. सो मेरे पैराइटल लोब में यही एक एरिया है विच इज़ द सेंसरी एरिया, which is going to have this temperature, taste, touch, pressure and pain. अब आ जाओ टेम्पोरल लोब में. टेम्पोरल लोब में दो एरियाज रहेगी, दैट विल बी ऑफ ऑडिटरी, दैट इज फॉर हियरिंग, एंड विल बी ऑफ स्मेल. स्मेल की एरिया रहेगी और ऑडिटरी एरिया रहेगी इन द टेम्पोरल लोब. So you will be having two areas over there, one of smell and one of auditory. ये वाले चार्ट में आपके कंप्लीट करो उसको. सी ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी विल बी कंसर्न विथ हियरिंग. olfactory area, olfaction means sense of smell, this will be concerned with sense of smell over here. टेम्पोरल लोब में हियरिंग और स्मेल, ये दो मेन एरियाज रहेगी. ऑल्फैक्टरी लोब्स में भी रहता है सेंसेशन ऑफ स्मेल का, बट टेम्पोरल लोब में भी रहता है. हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ऑल्फैक्टरी लोब्स आर रिड्यूस्ड. टेम्पोरल लोब ऑल्सो हैज़ एन एरिया फॉर स्मेल. So just do these two areas, auditory area, olfactory area in the temporal lobe. Auditory will be concerned with hearing. Olfactory will be concerned with the sense of smell. नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीपिटल लोब पे. उसमें रहेगी हमारी विजुअल एरिया. ऑक्सीपिटल लोब वी नो इज कंसर्न विथ विजन. हमारी जो ऑप्टिक नर्व्स हैं इज कंसर्न विथ विजन. सो विजुअल एरिया रहेगा ऑक्सीपिटल लोब में. सेंसेशन ऑफ लाइट आएगा ऑक्सीपिटल लोब में. जो भी हम देखते हैं, राइट आई जो देखती है उसका इमेज बनता है लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे, और लेफ्ट आई जो देखती है उसका इमेज बनता है राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे. We have seen that cross connections. Right side of the body is working for right side of the brain is working for left side of the body and vice versa. अब हमको एक और एरिया करनी है which is the Wernicke's area. WERNICKES, Wernicke's area. Now where is this Wernicke's area located? Let me show you. Alright, this is the Wernicke's area. देखो, just at the junction of this lateral sulcus between the parietal lobe and the temporal lobe, this Wernicke's area is located. So it is more in the temporal lobe only. इसीलिए Wernicke's area की location temporal lobe में लिखते हैं. Wernicke's area is more in the temporal lobe only, although ये जंक्शन पे है. जैसे ब्रोकास एरिया भी ये जंक्शन पे थी, बट उसका लोकेशन देखो आपको दिख रहा है फ्रंटल लोब में. Wernicke's area का लोकेशन इज इन द टेम्पोरल लोब, एंड दिस इज कंसर्न्ड विथ योर सेंसरी स्पीच एरिया. अब कोई मुझे बताएगा कि सेंसरी स्पीच एरिया मतलब क्या होगा?
जो हम सुन रहे हैं स्पीच, और हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो हम स्पीच सुन रहे हैं और हम जो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, वो होती है सेंसरी स्पीच एरिया। जैसे मैंने मैंगो बोला, तो ये कौन सी लैंग्वेज है? मैंगो इज विच लैंग्वेज? English. यस। English. आम इज विच लैंग्वेज? Hindi. Hindi. हिंदी। आंबा इज विच लैंग्वेज? Marathi. Marathi. मराठी। ओके, दैट इज हाउ यू आर एबल टू इंटरप्रेट। आप सुन के इंटरप्रेट कर रहे हो कि ये कौन सी लैंग्वेज है। ये आपको कैसे आया है? कैसे आया है? खुद ही आ गया ये मेमोरी में बिल्डअप हुआ है। When you were small, mango was shown to you in your textbooks, mango was shown to you by your parents, so you know कि ये मैंगो है, ये मैंगो है। नाउ आई एम श्योर कि जब हम मैंगो बोल रहे हैं, आप इमेजिन भी कर सकते हो कि मैंगो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वॉट इज़ द कलर ऑफ द मैंगो? ये आपके दिमाग में खुद ही आ जाता है। मैंने मैंगो बोला, यस, मैंने मैंगो बोला तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाता है उसका स्ट्रक्चर, उसका टेस्ट, उसकी सीजन। मैंने आम बोला तो आप खुद ही कोरिलेट कर लेते हो। दिस इज सेंसरी स्पीच एरिया। सेंसरी स्पीच एरिया हमारे पास बिल्डअप होती है। ये वर्ड मैंने सुना है क्या? हाँ सुना है। मैंने मैंगो बोला, आप सबने सुना था, इसीलिए आपने रिस्पॉन्ड किया। अगर मैंने कोई ऐसा वर्ड बोला रहता जो आपने कभी नहीं सुना है, तो आप रिस्पॉन्ड करते। व्हाट इज नियोपेलियम? बोलो, व्हाट इज नियोपेलियम? ये वर्ड कभी सुना है? सुना है ये वर्ड? No, ma'am. नहीं सुना है तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी। आप कुछ इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज दिस वर्ड यू आर हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो वर्निक्स एरिया इज गोइंग टू बी कंसर्न विथ सेंसरी स्पीच एरिया। हमारी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हम समझते हैं, ऑलराइट, दिस इज को रिलेटेड विथ मेमोरी। आपने इतने सालों से ये लैंग्वेज सीखी है, जो वर्ड्स आपको आते हैं, अगर वो आपने सुने तो वर्निक्स एरिया पे डेफिनेटली आपको इंटरप्रिटेशन हो जाता है कि ये किस चीज़ की बात हो रही है। मैंगो बोला तो आपको समझ में आ रहा है कि आम की बात हो रही है, फ्रूट की बात हो रही है। यू विल नॉट थिंक कि किसी वेजिटेबल की बात हो रही है। सो वर्निक्स एरिया इज सेंसरी स्पीच एरिया। Now one person can know 5 languages, one person can know 10 languages. That is how we develop our sensory speech area, that is the vernix area. Now I know 4 languages. I can communicate in 4 languages. क्यों? क्योंकि मेरे मेमोरी में, मेरे वर्निक्स एरिया में वो 4 लैंग्वेजेस के सारे वर्ड्स दे आर फिट ओवर हियर। ओके, जब मैंगो बोला, आम बोला, आंबा बोला, मुझे समझ रहा है कि किसकी बात हो रही है। सो दिस इज द रोल ऑफ सेंसरी स्पीच एरिया। आप जिससे लैंग्वेज समझते हो, आप जिससे कम्युनिकेशन समझते हो, दैट इज वर्निक्स एरिया। अब आपने कभी एक पर्सन देखा है जो बात नहीं कर सकता है, जो बोल नहीं सकता है? ऐसा किसी को देखा है? यस, सुना तो होगा। Yes, ma'am. हाँ, पर वो Yes. सुन सकते हैं Yes, सब, ma'am. वो सुन सकते हैं सब। ओके, जब ये वर्निक्स एरिया अच्छे से काम कर रही है, वो सब सुन सकते हैं, उनको समझता है, उनको लैंग्वेज समझती है। बट ब्रोकाज एरिया से उनको सिग्नल नहीं मिलता है। दे कैन नॉट मूव देयर टंग एंड जॉ मसल्स टुगेदर टू प्रोड्यूस दैट साउंड। दे कैन नॉट स्पीक। वो सुन सकते हैं सारी लैंग्वेज, वो समझ सकते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जब टीवी देखेंगे, ये टीवी देख सकते हैं अच्छे से, बट ये खुद का कुछ बोल नहीं पाते हैं। ब्रोकाज एरिया अगर नहीं रहा तो आप बोल नहीं पाओगे। इट इज़ योर मोटर स्पीच एरिया, आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, मोटर। वर्निक्स एरिया इज सेंसरी स्पीच एरिया। what other people are speaking, what other language is going on, you can interpret. Also tell me कि जब मैं म्यूज़िक बजा रही हूँ आपको सुनाई देता है कि ये म्यूज़िक है। जब मैं गुस्से में बात करूँगी आपको मेरी टोन से समझ में आता है कि मैं गुस्से में हूँ। When I am speaking softly आपको मेरी टोन से समझ में आएगा कि आई एम स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। ये आप इमेजिन करके देखो घर पे आपकी मम्मी के साथ। When मम्मी इज शाउटिंग, you know her tone. By her tone you can experience that she is shouting. When she is speaking softly, you will understand that she is speaking softly.
जब म्यूज़िक चल रहा है पीछे से तो आपको समझता है कि म्यूज़िक चल रहा है. म्यूज़िक में भी कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड म्यूज़िक एंड सॉफ्ट म्यूज़िक? बोलो. यस. यस मैम. यस. सो हमको ये समझता है कि म्यूज़िक लाउड है, म्यूज़िक सॉफ्ट है, म्यूज़िक सूदिंग है. ऑल दिस इज़ रोल ऑफ वर्निक्स एरिया. इट इज़ सेंसरी स्पीच एरिया. फ्रैंकली स्पीकिंग ये सब जो एग्जाम्पल्स हमने अभी डिस्कस किए और इतना डिटेल में किया वो आपको है नहीं. आपको सिर्फ वर्निक्स एरिया के साथ MCQ आता है, दैट इट इज़ सेंसरी स्पीच एरिया. ब्रोकाज एरिया के साथ MCQ आता है, इट इज़ मोटर स्पीच एरिया. ब्रोकाज एरिया का लोकेशन फ्रंटल लोब, वर्निक्स एरिया का लोकेशन टेम्पोरल लोब. दैट्स इट. So temporal lobe will have this vernix area. It will have area of olfaction, that is smell, ये olfactory area, sense of smell, and it will have this auditory area, sense of hearing. टेम्पोरल लोब के साथ आपको ये सारे लिखने हैं. हियरिंग में भी आपको समझता है कि म्यूज़िक लाउड है. जब हमको वो म्यूज़िक नहीं अच्छा लगता है, लाउड साउंड नहीं अच्छा लगता है, तो हम बोलते हैं इट इज़ नॉइज़. फॉर अस इट बिकम्स नॉइज़, हेडेक होता है. सिमिलरली जब वो आवाज़ सूदिंग है, सॉफ्ट है, तो हमको वो पसंद आती है. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी कैन इंटरप्रेट. ये सारा काम होता है टेम्पोरल लोब में. ये सारा काम होता है टेम्पोरल लोब में. Come with the sense of smell. Can you differentiate in the smell of a rose flower and a mogra flower? Yes ma'am. Yes. ma'am. Can you differentiate Yes, ma'am. in the smell of a perfume and of a soap? Yes ma'am. हाँ, आप कोरिलेट कर सकते हो. ओके. Can you differentiate in the smell of a mango and the smell of a watermelon? Yes ma'am. Yes. Yes. यस. Yes, ma'am. सो ये सेंस ऑफ स्मेल हमको मिलता है टेम्पोरल लोब से. माइन्यूट डिफरेंस इन द स्मेल ऑल्सो वी कैन अप्रिशिएट. एक नॉर्मल मैंगो का स्मेल और एक रॉटन मैंगो का स्मेल जो थोड़ा सा ही ख़राब हुआ है, हल्का सा चेंज रहता है स्मेल में, बट हम सेंस कर लेते हैं उसको. वी से कि ये आम ख़राब हो गया है, इसमें से स्मेल आ रही है. नॉर्मल अनियन का स्मेल और थोड़े से ख़राब अनियन का स्मेल हम तुरंत पता कर सकते हैं. दिस वी गेट फ्रॉम द टेम्पोरल लोब. ऑडिटरी एरिया इन द टेम्पोरल लोब. वर्निक्स एरिया, अंडरस्टैंडिंग स्पीच. देखो, इट इज सेंसरी स्पीच एरिया. इट इज मेकिंग यू अंडरस्टैंड अ लैंग्वेज. रिटन लैंग्वेज ऑल्सो. अगर मैंने ए लिखा है और मैंने अ लिखा है, तो यू नो ए इज इंग्लिश, यू नो अ इज हिंदी. So we are understanding the language. This is sensory speech area, which is the vernix area. ये visual area रहेगी occipital lobe में, which is our last lobe over here. See this will be concerned with integrating and processing visual information. ये एक visual information के साथ आपको उसका color, उसका shape, उसका distance सब समझ जाता है. आपको सब समझ जाता है कि ये ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पे है. अभी आप जहाँ पे बैठे हो जिस रूम में, अगर सामने कोई कबर्ड है या सामने कोई टेबल है, तो बाय सीइंग यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्टेंस. आपको पता चल रहा है कि ओके ये इतना दूर है. आपको उसका शेप समझ में आता है, उसका साइज समझ में आता है, उसका कलर समझ में आता है. ऑल दैट इज कंसर्न्ड विद द सेंस ऑफ विजन विच गोज टू द ऑक्सीपिटल लोब. Quickly now, frontal lobe will be concerned with all this: your problem solving, your reasoning, your recognition, your emotion, your social skills. ये prefrontal area जो association area है. Premotor area will be dealing with all your involuntary functions. उसकी speed बढ़ानी है, उसकी speed कम करनी है, depending on autonomic nervous system. Motor area will be concerned with all your voluntary functions of the body. सेंट्रल सल्कस के पीछे वाला होगा सेंसरी एरिया. बॉडी से जो भी सेंसेशन आ रहा है, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन, टेस्ट, सब यहाँ पे आएगा. ऑक्सीपिटल लोब विल बी कंसर्न विथ योर विजन. पूरा इंटरप्रेट करना एक चीज़ को, उसका शेप, उसका कलर, उसका साइज, उसका डिस्टेंस, ये सब काम होगा यहाँ पे.
Temporal lobe will be concerned with the sense of smell, will be concerned with the sense of hearing, and you will have a vernix area over here between the junction of the parietal and the temporal lobe यहाँ पे, but ये area temporal lobe में आएगी, and you will have a Broca's area over here which is helping you speak. What you are speaking is through your Broca's area, and अभी आप जो सुन रहे हो, आप मेरी लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर रहे हो सुन के, that is vernix area. When you are speaking, that is Broca's area. So quickly now, just see that you have understood this complete chart. Frontal lobe में 4 areas, parietal lobe में एक ही एरिया एक्चुअली, ये जो गस्टेटरी एरिया है उसको हम यहीं पे लिख देते हैं, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, पेन के साथ ही टेस्ट लिखते हैं. टेम्पोरल लोब में हियरिंग और स्मेल और ये वर्निक्स एरिया विच इज़ द सेंसरी स्पीच एरिया, तीनों. ऑक्सीपिटल लोब में विजन और द विजुअल एरिया. Quickly now see that you are able to understand all these areas along with their function. These are the functional areas in each cerebral hemisphere. The right cerebral hemisphere is going to work for the left side of the body, and the left cerebral hemisphere is going to work for the right side of the body. That means मेरे right side से जो stimulus आएगा वो मेरे left cerebral hemisphere में जाएगा, so sensory area में. फिर से सुनो, मेरे राइट साइड से जो सिग्नल जाएगा, जो स्टिमुलस जाएगा, वो मेरे राइट पैराइटल लोब में जाएगा. हाँ बोलो बेटा. हम डाउट था, आप बोल लो तो मैं पूछती हूँ. हाँ आप ठीक है. वही जो हमने कल देखा था, that right side of the brain is going to work for left side of the body and left side of the brain is going to work for right side of the body. So right side पे जो मुझे कुछ फील होगा तो वो ब्रेन में जाएगा लेफ्ट सेंसरी, लेफ्ट पैराइटल लोब के सेंसरी एरिया. ऑलराइट. जो लेफ्ट आई देखती है उसका विजन बनता है राइट साइड पे, और जो राइट आई देखती है उसका विजन बनता है लेफ्ट साइड पे. इट इज़ सो ट्रिकी कि अगर आप एक ट्री देख रहे हो तो जस्ट सी द वाइट बोर्ड अगेन. अगर आप एक ट्री देख रहे हो सो ये एक हाफ ट्री का, ये अगर आपकी राइट आई ने देखा है तो लेफ्ट साइड पे इमेज बनता है, और दूसरा हाफ अगर लेफ्ट आई ने देखा है तो उसका इमेज दूसरे साइड पे बनता है, और ये दोनों इमेज जॉइन होके आपको एक ट्री दिखती है. ये दोनों इमेज जॉइन होके आपको एक ट्री दिखती है. वी विल नॉट गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दिस बिकॉज इसका डिटेल आपको नहीं है. But you have to remember that the right side of the brain is always working for the left side of the body, and the left side of the brain is working for the right side of the body. हाँ अदिति बोलो बेटा. मैम वो अभी आपने मतलब पैराइटल लोब इज एसोसिएटेड विद टेस्ट, तो जो कोरोना में जो पेशेंट्स हैं उनको टेस्ट का परसेप्शन नहीं होता है, तो वो क्या मतलब ब्रेन से रिलेटेड है? नहीं, वो ब्रेन से रिलेटेड नहीं है. वो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस में जैसा होता है उससे रिलेटेड है. बिकॉज दिस वी आर एबल टू करेक्ट. नो, जैसे ही वायरल लोड कम हो गया वापस सेंसेशन ऑफ स्मेल आ जाता है. दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस. ये जो रहेगा ये परमानेंट डैमेज रहेगा या परमानेंट इंजरी रहेगी. यूजुअली हमको अगर फीवर भी आता है तो हमको कुछ भी टेस्ट नहीं आती है, हमको टेस्ट अच्छी नहीं लगती है. ऑल दोज आर टेम्पररी. They are related to the viral load in the body, not actually related to damage to these areas in the cerebrum. All right? Yes. देखो अभी यहाँ पे ये सेंट्रल सल्कस. अब ये जो हमने एक एक लोब में बनाए थे डायग्राम्स, इसको कंबाइन करके बना सकते हैं बिकॉज ये वाला डायग्राम हम बनाते हैं. ये यहाँ पे ऑल्फैक्टरी लोब है इसीलिए यहाँ पे स्मेल दिया है. टेम्पोरल लोब इज़ ऑल्सो गोइंग टू हैव हियरिंग. इट्स गोइंग टू हैव, किसी का फेस देख के हमको, यहाँ अगर मैंने नाम भी बोला, अभी मैंने अवनी मैम बोला, तो आप लोगों को समझ में आता है कि विच पर्सन आई एम स्पीकिंग अबाउट.
So all that is related to the processing in the temporal lobe, where you can actually understand. एक कुछ सुन के, मैंगो सुन के आपको समझ में आता है कि किसकी बात कर रहे हैं. ओके अपनी मैम सुन के आपको समझ में आता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं. इफ़ आई से ऑफ मदर टेरेसा, यू कैन को रिलेट कि ओके किसकी, आपके इमेज में फटाफट एक पिक्चर आ जाता है. जो वर्ड आपका सुना हुआ है, जो पर्सनालिटी आपकी देखी हुई है, उसका इमेज आपके ब्रेन में, आपके माइंड में इमीडिएटली आ जाता है. सो दिस इज व्हाट मेमोरी प्लेज अ रोल इन. यस बोलो बेटा. मैम केमिस्ट्री का क्लास है. ठीक है, 5 more minutes I will take just to complete this part. cerebral hemispheres में कौन से functions हैं, and उसके बाद yeah, from tomorrow can you all join at 7:40 in the morning. We are planning of shifting this batch in the morning hours because ये time थोड़ा सा late हो जा रहा है. नो मैम, अवनी मैम का क्लास होता है. 8. हाँ मैम, केमिस्ट्री लेक्चर इज देयर. केमिस्ट्री लेक्चर is there. मैम ये 9 बजे चलेगा, 10 बजे दोनों टाइम. 9 बजे मैम ये टाइम ठीक है ना? ओके चलो इस पे बाद में डिस्कस करते हैं. आई विल पुट अप अ मैसेज, आप रिप्लाई करना. लेट मी फिनिश ऑफ दिस. ऑल ऑफ यू आर डन विद दिस चार्ट, with the areas, with the lobes. All right, so now I want to read out this part. All right, see, we have done this part. Corpus callosum is typically seen in the mammalian brain. It's a mammalian character. It is the largest commissure of the brain, largest connecting tracts वाला part है brain का. It has an anterior and posterior fold. Anterior part को बोलते हैं genu, posterior को बोलते हैं splenium. And why an injury to the right cerebrum affects the functioning of the left side of the body. We are done with this part because it is always criss-cross connection. So right side पे injury होगी तो left side affect होगा, left side पे injury होगी तो right side affect होगा. चलो now quickly, frontal lobe. They have motor area which controls voluntary motor activities. They have premotor area which will be the center for involuntary movements and autonomic nervous system. Association area is for coordination between sensation and movements. Broca's area or motor speech area, it will translate the thoughts into speech. आप जो सोच रहे हो, आप जो बोलना चाह रहे हो communication में, so it is a motor speech area. Expression of emotions, intelligence, willpower, memory, personality areas are all located in the frontal lobe. Parietal lobe, they are mainly for somasthetic sensation of pain, pressure, temperature, taste. Temporal lobe, it contains centers for smell, hearing, speech and emotions. Occipital lobe, they have visual area mainly for sense of vision. Area of contact between temporal, parietal and occipital lobe is center for Wernicke's area or intelligence center. यहाँ पे पूरा जो भी हम सुनते हैं उसकी इमेज भी बन जाती है हमारे माइंड में. It helps in understanding of spoken and written words. क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है ये वर्निक्स एरिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट है. सेरिब्रम दस शोज ऑल 3 टाइप्स ऑफ एरियाज. सेंसरी एरिया भी दिखाता है, मोटर एरिया भी दिखाता है और एसोसिएशन एरिया भी दिखाता है. एरियाज विच आर प्योरली सेंसरी, विच आर प्योरली मोटर and the association areas all are seen in the cerebrum. Come here, Wernicke's area. It is sensory speech area responsible for understanding and formulating the written and spoken language. ये पॉइंट लिख लो चाहिए तो. It is sensory speech area, ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगा लैंग्वेज को. And this is in the temporal lobe. Broca's area is the motor speech area. It translates thoughts into speech and controls movement of tongue, lips and vocal cords. ये ऑर्डर देगा आपकी टंग को, आपकी लिप्स को, आपके वोकल कॉर्ड्स को जब आपको बोलना है, so that you pronounce and you say correct words. कोई आपसे हिंदी में बात कर रहा है तो आप उसको हिंदी में ही रिप्लाई करोगे. Those kind of orders are going to come from the brain.
If someone is speaking to you in English, you will try to reply back in English only. So all these orders are going to come from this Broca's area. Alright, can I continue for 10 more minutes or you want me to stop? Bolo. Ma'am, this chemistry lecture at 8:50. Okay.